Friends, hope you all are keeping well. अभी एग्जाम टाइम आ गया और जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ऑडिट एंड एश्योरेंस जो 5th सेम होता है उसका ऊपर स्टूडेंट लोग को बहुत डिफिकल्ट होता है कि इतना कम टाइम में कैसे प्रिपेयर करेंगे. सो preparing for the 5th sem in case of audit is little bit difficult क्योंकि आदमी लोग ज़्यादा टाइम देते हैं अकाउंट्स, ज़्यादा टाइम देते हैं मैथ्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम देते हैं, टैक्स में भी है जो एडवांस टैक्स है उसमें भी टाइम देते हैं. सो आदमी लोग को ये ऑडिट पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता है. बट I tell you, audit is a very easy subject and you can get a very good marks in audit if you always keep in track with your subject. So, ये जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो 5th सेम होता है इसके लिए I have given you 26 questions only with answers. So all the questions are accompanied with answer. And these 26 questions are all model questions which can carry at least 85-90% marks. You can see the quality of the answers also. So अगर किसी को मान लीजिए कि एक क्वेश्चन होता है इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट जहां देयर आर 16 डिफरेंस पॉइंट डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट. देयर आर 16 पॉइंट्स आई हैव गिवन एंड इफ यू वांट यू कैन राइट 10, 8 फिर भी आपको अच्छा नंबर मिलेगा. So I have given you the questions with answers of model nature answer. So if you go once or twice with this all 26 questions, then a very good suggestion will come, and I hope some of the questions or maximum question, maybe all questions will come from this selected 26 questions. And if you revise these 26 questions 2 times, then it will give you very good marks. Friends, this is only a educational study material and not intended for sale. This study mat is of nearly 95 pages including answers. So आपको अगर आंसर डिटेल चाहिए तब you can download it from the Telegram link which I will give you in the description box of the channel, YouTube channel. So wish you all the best for the exam and we shall continue with the answers with questions. Friend, let us come to the first question. This is what is internal audit? What are its advantage? Is it necessary for every company to have an internal audit system? So first we have to, like this, you see in the screen there are 26 questions have been selected here, and all these 26 questions are very important questions. You can take down all these 26 questions here. The first question is what is internal audit? And let me explain, because in 26 questions, if I will explain all the questions with answers, it will take a long time. So I will explain
one or two questions and all the answers will be available in the Telegram link. You can very well download. There will be no problem. So friends, let us come to the first question. What is internal audit? What are its advantages? Is it necessary for every company to have an internal audit system? First, audit means it is an examination of books of account. There are two types of audit. One is your internal audit. Another one is external audit. इंटरनल ऑडिट का अंदर ये आपका जो मैनेजमेंट ऑडिट आते हैं. इंटरनल ऑडिटर आर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द स्टैट्यूटरी ऑडिटर जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिट, ये साल में एक बार होता है एक्सटर्नल ऑडिट, एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर. Some in case of government company they are appointed by the CAG. In case of bank they are appointed by the RBI. In case of cooperative society they are appointed by the authority of cooperative society, जो regulatory authority. So these are the framework. And internal audit जो होते हैं, this is a management wants to ensure compliance of the rules and regulations of the enterprise. इसलिए इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट जो है वो इंटरनल ऑडिट अपॉइंटमेंट कर होता है. So internal audit is an independent appraisal of activity within the organization. So independent appraisal of activity, this is important. What is independent appraisal of activity? This is independent appraisal of activity. And independent means the internal auditor is independent and he is able to express, he is able to report independently. So internal auditor ये होता है कि मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एक सेपरेटली ऑर्गेनाइजेशन में होता है, या बाहर का कोई ऑडिटर को भी अपॉइंटमेंट वो लोग कर सकते हैं. That depends on the management. And the internal auditor is giving an independent report. And internal auditor audit का काम क्या होता है? Review of accounting, जो accounts वो कैसे होता है, financial and other business practice. So accounts review, business practice and financial position, ये तीनों, these three things are reviewed by the internal auditor. Three things. And this internal audit is a protective arm of the management. Management जो होता है, they want to know what is exactly going on in the organization. ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इसलिए it is a protective arm that gives satisfaction to the management. So internal audit is an assurance to the management. Internal auditor goes to the depth of the transactions. All the transactions, financial, accounting and business aspect are looked upon by the internal auditor. The scope, जो internal auditor का क्या काम, that is outlined by the management. Management is giving the scope
to the internal auditor. It is a type of control. Third point, internal audit is a control. अगर ऑडिट नहीं होगा तब किसी का ऊपर कंट्रोल भी नहीं रहेगा. So audit is automatic a control subject. Now when the audit is in place, the employees, officers, they are always looking upon their duty perfectly. So audit is a control over the day-to-day affairs of the business. इंटरनल ऑडिट जो होता है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन का आदमी भी कर सकते हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर एम्प्लॉइज. दे आर इंडिपेंडेंट. सो कंपनी खुद एम्प्लॉय को भी अपॉइंटमेंट कर सकता है इंटरनल ऑडिटर हिसाब से. सो इंटरनल ऑडिटर अपॉइंटमेंट is from the organization employees or from the outside. Sometimes the big companies, they have own internal audit department, and sometimes own audit department ज़्यादा expensive हो जाता है, इसलिए they give the job to some other auditors like chartered accountant, cost accountant, and others also. So internal auditor appointment may be from outside and may be within the organization. The work is done by separate set of staff. जो internal audit staff होता है वो regular staff जो काम करते हैं रेगुलर स्टाफ नहीं है. दे हैव गॉट ए सेपरेट डिपार्टमेंट, दे हैव अ सेपरेट सेटअप, सेपरेट स्टाफ, दे आर इंडिपेंडेंट टू रिपोर्ट, दे विल रिपोर्ट टू द हायर मैनेजमेंट. इंटरनल ऑडिटर का जो काम होता है जनरली दीज आर डन बाय द अदर ऑडिटर्स एज वेल. Internal auditor will see there is no wastage, because internal auditor is a management audit, and management always wants that the organization कैसे अच्छा चलेगा, waste नहीं होगा. These jobs are very important for internal auditor, and whether the business is efficiently carried out or not efficiently carried out, internal audit can report. Friends, जो external auditor होते हैं, that is statutory audit, they are not supposed to report on the efficiency of the business. आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है क्या अच्छा नहीं चल रहा है, कोई सजेशन देने के लिए. This is not the job of external auditor or statutory auditor. Statutory auditor is always from the outside, but internal auditor will look after the efficiency of the business. They can give advice about the efficiency of the business as well. And तब देख लीजिए इतना important होता है internal audit. So what are the advantages? The audit is preventive in nature. मान लीजिए कि एक आदमी का डेथ हो गया, डेथ होने का बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोलता है ये उनका हार्ट अटैक हुआ था इसलिए उनका डेथ हो गया. तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने का बाद आप मेडिसिन दे नहीं सकते हैं. You are only postmortem is a just step to find out what is the reason of the death, क्यों डेथ हो गया. बट ये प्रिवेंटिव नेचर नहीं है. दिस इज द जॉब ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर. दे डू नॉट गिव यू एडवाइस वेदर बिजनेस इज रनिंग प्रूडेंटली और नॉट. जो इंटरनल ऑडिट होता है वो डे टू डे ट्रांजैक्शन चेक करते हैं, कोई कहाँ गलती होता है
तो ये बोल देते हैं कि इधर गलती होता है, तो आपको ये गलती नहीं करना चाहिए। इसलिए इंटरनल ऑडिट इज ए प्रिवेंटिव जॉब। फ्रेंड्स, ये जो आप देखते हैं पॉइंट, एडवांटेज का 1 नंबर पॉइंट जो आप देखते हैं, दिस इज प्रिवेंटिव नेचर, राइट। सो इंटरनल ऑडिट होने से फ्रॉड, एरर, ये सब होने का चांस भी कम हो जाता है। देन द सेकंड पॉइंट इज कंप्लायंस। जो इंटरनल ऑडिट होता है, दिस इज ए कंप्लायंस रूल, जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, मैनेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लायंस, रूल्स एंड प्रोसीड्योर कंप्लायंस। कंप्लायंस मीन्स क्या होता है ना, वेदर कंपनी इज फॉलोइंग रूल्स रेगुलेशंस, वेदर the organization is conducted with the rules framed by the management. मैनेजमेंट जो रूल बनाए इसी तरफ काम चलता है ना नहीं। इंटरनल ऑडिट लुक्स आफ्टर ऑल these things. Again, another important area is internal check. The internal auditor always see whether a effective internal control is there. अगर आपका शरीर में कंट्रोल ठीक नहीं रहेगा तो डेफिनेटली वी विल बी सिक। सिमिलरली इंटरनल ऑडिट में डे टू डे चेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल चेक। सो इंटरनल ऑडिट का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है इंटरनल चेक on a day-to-day transaction. Internal audit is carried on day-to-day basis, and all day-to-day transactions are checked by the internal auditor. जो external, जो statutory auditor होता है, they are relying on the report of the internal auditor. Internal auditor का report वो लोग पहले देखते हैं, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है। इसलिए इंटरनल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल ऑडिट आइडेंटिफाइज द वीकनेस एंड सजेस्ट द रिमेडियल मेजर्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या वीकनेस होता है और क्या करने से ये जो आप रिमेडियल मेजर्स क्या होना चाहिए, सो दैट द इंटरनल ऑडिट विल गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। सो कहां वीकनेस होता है, कहां वेस्टेज होता है, कहां फ्रॉड होने का चांस ज्यादा है, दे आर फाइंडिंग आउट ऑल दीज एरियाज। कैश सेल, कैश बुक मेंटेनेंस, दिस इज ए प्रोन एरिया फॉर फ्रॉड, जहां फ्रॉड हो सकता है। इसलिए गुड इंटरनल चेक बोलते हैं। अगर कोई आदमी कैशियर होता है तो ये कैश बॉक्स उनका पास रहते हैं, जो कैशियर है वो कैश बुक मेंटेन नहीं करना चाहिए, दूसरा आदमी कैश बुक मेंटेन करेगा। तामाने जो कैशियर है वो कैश बुक मेंटेन नहीं करेगा, दूसरा आदमी कैश बुक मेंटेन करेगा। सो कैशियर का पास जो बैलेंस रहेगा और कैश बुक में जो बैलेंस आएगा, ये दोनों मिल जाना चाहिए। दिस इज ए गुड इंटरनल चेक, एंड ए गुड इंटरनल चेक will give you satisfactory operations. जो आपका कैशियर होते हैं उनका पास कैश रहेगा, एक दिन का अंत में जितना कैश उनका पास है, और जो लेजर मेंटेन करते हैं, कैश बुक मेंटेन करते हैं, उनका पास जो बैलेंस है, ये दोनों टाली हो जाना चाहिए। अगर एक ही आदमी दोनों काम करेगा तो ये फ्रॉड होने का चांस रहेगा। इसलिए गुड इंटरनल चेक इज नेसेसरी।
इंटरनल ऑडिटर का जो रिपोर्ट होता है वो मैनेजमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका बेसिस में वो लोग कुछ एक्शन कर सकते हैं। और इंटरनल ऑडिट का आप देख लिए इंटरनल ऑडिट का क्या एडवांटेज है और कहां कहां एप्लीकेबल होता है। ऐसे एक चीज में बोल देते हैं, इंटरनल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू सम ऑर्गेनाइजेशन ऑन ए मैंडेटरी बेसिस, बट एनीबॉडी, those who have got a sizable business, big business, they can so moto appoint the internal auditor. However, internal audit कहाँ अप्लाई होता है, इसके लिए मैं इधर लिखे हैं, ये लिस्टेड कंपनी, जो कंपनी आपका लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, all listed company will have a internal audit. And the statutory auditor is always looking after the internal audit report. ये तो आपका लिस्टेड कंपनी का बात बोल दिए कि जो लिस्टेड कंपनी है दे हैव टू डू द इंटरनल ऑडिट एटलीस्ट वंस इन ए ईयर। जो अनलिस्टेड कंपनी होता है तो उनका पास ये 4 क्वालिटी में कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होगा। द फर्स्ट वन इज योर, वन इज योर लिस्टेड कंपनी, अनदर वन इज योर पेड अप कैपिटल नॉट लेस देन 50 करोड़। अगर आपका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है तो इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल। turnover means sale, the second point, turnover not less than 200 crores, this is very important. Outstanding loan not less than 100 crores, deposit to 25 crores या 25 से ज्यादा। अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है तब ये 4 कंडीशन में कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब इंटरनल ऑडिट इज मैंडेटरी। सो फ्रेंड्स, आप देखते हैं लिस्टेड कंपनी, ऑल लिस्टेड कंपनी, जो अनलिस्टेड कंपनी उनका 4 कंडीशन है, 4 से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल। जो नेक्स्ट वन इज योर प्राइवेट कंपनी, टर्नओवर नॉट लेस देन 200 करोड़, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टर्नओवर नॉट लेस देन 200 करोड़, और लोन नॉट लेस देन 100 करोड़। फ्रेंड्स, अगर ये प्राइवेट कंपनी का ये 2 कंडीशन से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब इंटरनल ऑडिट इज मैंडेटरी। क्या इंटरनल ऑडिट, ये तो जहां मैंडेटरी ये लोग मैं बोल दिए आपका ये नोट में आ गया, बट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं इसी कंडीशन का अंदर नहीं आते हैं फिर भी वो लोग इंटरनल ऑडिटर अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं टू हैव ए प्राइमरी कंट्रोल ओवर द बिजनेस का ऊपर कंट्रोल करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल ऑडिट चालू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, द सेकंड क्वेश्चन इज योर डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक। इंटरनल चेक इज ए डे टू डे ट्रांजेक्शन। इंटरनल ऑडिट का बारे में तो आपको मैं बोले हैं, आप अगर इसी स्टाइल में क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। पहले डेफिनेशन, देन फंक्शन ऑफ द इंटरनल चेक, देन रिजल्ट, फॉर्मेशन, आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट मैटर, रिपोर्टिंग, रेम्यूनरेशन ऑफ द स्कोप, ये आप 9 पॉइंट्स आर देयर। अगर 5 नंबर क्वेश्चन में आप अगर 9 पॉइंट्स आप देते हैं तो डेफिनेटली द एग्जामिनर विल गिव यू वेरी वेरी गुड मार्क। फ्रेंड्स, में फिर भी बोल देते हैं अगर आपको टाइम नहीं होता है तो आप 5-6
पॉइंट दे करके आ जाइए, फिर भी आपको 70, 75, 80% मिल जाएगा, राइट। सो इसी तरह वी हैव गिवन all the 26 questions with answers. This is a question on internal audit and external audit. जो statutory audit, ये दोनों में डिफरेंस। इंटरनल ऑडिट जो होता है, ये आपको मैं कुछ समझाएं। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज ए एक्सटर्नल ऑडिट। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो अपॉइंटमेंट होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फार्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट दे आर अपॉइंटेड एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर। गवर्नमेंट कंपनी में सीएजी अपॉइंटमेंट को देते हैं, और बैंक में आरबीआई का अपॉइंटमेंट होता है, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट ही अपॉइंटमेंट होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए। सो इसमें फिर डिफरेंस क्या है? आपको जो 26 क्वेश्चन है उसमें आपका लाइब्रेरी, आपका कॉलेज, ये सब ऑडिट का प्रोग्राम बनाना भी आता है। अगर आपको ये 2-3 प्रोग्राम पता हो जाता है और दूसरा कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी ये बोल दिया, तो लगभग 80% पॉइंट्स आर सेम। सो फ्रेंड्स, अगर आप कॉलेज लाइब्रेरी का पढ़े हैं, कॉलेज का ऑडिट प्रोग्राम पढ़े हैं, फिर भी दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो 80% आर द कॉमन थिंग्स, कॉमन चेकिंग, कॉमन ऑडिट प्रोसीड्योर, ये आप लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विथ दिस you can very well download all the answers and keep the answers with your either laptop or anywhere in your phones, and you can read it, and just a 2 times reading will give you a lot of satisfaction and lot of marks. Thank you for your patient hearing. Thank you.